السلام علیکم. آج ہم علم النحو شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی. تھوڑا سا میں شروع پہ آپ کو لے جانا چاہوں گا. لفظ جو ہے عربی میں الفاظ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک لفظ بامانی، بمعنی یعنی جس کی کوئی معنی ہو، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ہوتا ہے بے معنی. لیکن بے معنی لفظ چونکہ قرآن میں نہیں ہے اور ہم قرآن سیکھنے کے لیے عربی سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارا جو کنسرن ہے وہ اس بامانی لفظ سے ہے. ٹھیک ہے. ہر بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں. سب سے پہلے فعل، ٹھیک ہے. اس کے بعد اسم اور اس کے بعد حرف. فعل، اس کا تفصیل ہم علم الصرف میں پڑھ چکے ہیں. علم الصرف میں ہم فعل کے بارے میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فعل میں جو تبدیلی آتی ہیں، ماضی ہے، مضارع ہے، نفی ہے، مثبت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سارا کچھ ہم نے علم الصرف کے لیکچر کے دوران پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ علم النحو میں ہم اسم کے بارے میں پڑھیں گے. اس کو بیسیکلی اسمن کہتے ہیں. یہ اسم نہیں ہے، اسمن، اسم. ٹھیک ہے. تو یہاں ہم علم النحو میں اسم کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اسم جو ہوتا ہے، اس میں ہم 4 چیزیں علم النحو میں ہم اسم میں بنیادی طور پر 4 چیزیں ان کے بارے میں پڑھیں گے. نمبر 1 حالت، اسم کی حالت. ٹھیک ہے. نمبر 2 جنس. ٹھیک ہے. نمبر 3 عدد. اور نمبر 4 وسعت. یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر ہم پڑھیں گے. حالت، جنس، عدد، وسعت. آج ہم حالت کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم حالت کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. حالت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، کسی جملے میں جب کوئی اسم استعمال ہوتا ہے تو اس کی عموماً 3 حالتیں ہوتی ہیں. یا تو وہ فاعل ہوتا ہے، یا تو وہ فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یا مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یا اضافی ہوتا ہے، یا حالت اضافت میں. ٹھیک ہے. فاعل وہ ہوتا ہے جو کوئی کام کرتا ہے، وہ ہیرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. فاعل وہ ہے جو کوئی کام کرتا ہے. مفعول وہ ہے جس پر کوئی کام ہوتا ہے یا جو کسی کام میں استعمال ہوتا ہے. اور اضافی یا حالت اضافت میں جو ہوتا ہے، ہم اس اسم کو کہتے ہیں جو اسم تعلق ظاہر کرتا ہے. مثال کے طور پر، یہ میرا کتاب ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ علی کی کتاب ہے. تو یہ جو تعلق ظاہر ہوتا ہے اس کو اضافت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں اردو کا ایک جملہ استعمال کرتا ہوں، جیسے علی نے عثمان کو چائے پلائی. ٹھیک ہے. علی نے عثمان کو چائے پلائی. تو یہ علی کے ساتھ جو نے لکھا ہوا ہے، نے جو لگا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاعل یہ ہے.
काम करने वाला आदमी कौन है? अली। को जिसके बाद लगा हुआ है, उस्मान के बाद को लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि उस्मान मफूल है, उस पे काम हो रहा है, ठीक है, वो काम कर नहीं रहा। लेकिन अरबी में ये ने, को और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। इस तरह हालती जो इजाफत है उसके लिए मिसाल के तौर पर उसका किताब, उसका घर, ठीक है, उसकी किताब, उसका कलम, तो ये जो बाकी का, के और की के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं तो ये इजाफत के लिए इस्तेमाल होते हैं। इससे पता चलता है फलानी चीज उसकी है, इसकी है, उसका है, ठीक है, ये इजाफत के ताल्लुक के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उर्दू में जहां पे ने इस्तेमाल होता है उसका मतलब ये है कि ये फाइल है, जहां पे जिसके बाद कोई इस्तेमाल होता है इस मतलब ये कि ये मफूल है, और जिन इसमों के साथ का, के, की इस्तेमाल होता है इसका मतलब वो कोई पोजीशन, कोई मलकियत, कोई ताल्लुक वहां पे जाहिर हो रहा है। तो ये तीन चीजें जो हम अरबी में लिखते हैं, फाइल को जब हम लिखते हैं तो फाइल को हालते फाइली में लिखते हैं, फाइल को हम हालते फाइली में लिखते हैं, यानी फाइल की अपनी जो हालत होती है, जो उसका स्टेटस होता है, उसमें हम लिखते हैं। मफूल को हालते मफूली में लिखते हैं, ठीक है, एक मिनट। फाइल को हालते फाइली में लिखते हैं, मफूल को हालते मफूली में लिखते हैं, ठीक है, और इजाफत को हालते इजाफी में लिखते हैं, ठीक है। इस हालत फाइली के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है रफा, ठीक है। हालत मफूली के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है नसब, हालत नसब। और इजाफत के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है जर, ठीक है। वैसे अरबी में हम इसको रफ़उन, यह है रफ़उन, लेकिन हम आसानी के लिए रफा कहते हैं। यह है नस्बुन, ठीक है, लेकिन उसको हम नसब कहते हैं मुख्तसर। और यह है जर्रुन, इसको मुख्तसर जर कहते हैं, रफा नसब जर, ठीक है। अब रफा नसब और जर की हालत में हम जो इसम लिखते हैं, ठीक है, रफा में जो इसम होता है उसके आखिर में यानी आखिरी हर्फ पे दो पेश आते हैं, एक पेश भी आ जा सकते हैं लेकिन अमूमन दो पेश, ठीक है। जो नसब वाला जो इसम होगा, हालत नसब में जो इसम होगा उसके आखिरी हर्फ पे दो जबर और एक अलिफ साथ होगा, ठीक है। और हालत जर में जो होगा उसके आखिरी हर्फ पे दो जेर होंगे। आमतौर पर जो इसम होंगे हालत रफ़ा में उसके आखिरी हर्फ पर दो पेश, हालत नसब में उसके आखिरी हर्फ पर दो जबर और साथ में एक अलिफ, और हालत जर में दो जेर, ठीक है। जैसे आप कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी मुहम्मदुन, यह हालत रफ़ा में है।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुन लफ्ज़ है। अच्छा, अब अजान में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद क्या है? अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, उसमें हालत नसब है, मुहम्मदन है। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, यानी मुहम्मदन, ठीक है। और दरूद शरीफ में हम किस तरह पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, वहां पे मुहम्मदिन हालत जर में है। कलमे में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुन हालत रफ़ा में। अजान में अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदन नसब में है। और दरूद शरीफ में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन, वो हालत जर में है, ठीक है। तो आमतौर पर इसम के आखिरी हर्फ पर दो पेश, जिस तरह इस पे दो पेश है हालत रफ़ा में। हालत नसब में दो जबर और साथ में अलिफ, यहां पे दाल पर दो जबर और अलिफ। और हालत जर में दो जेर, जिस तरह यहां पे दो जेर आ गए हैं, ठीक है। आम जो इसम है तकरीबन 85% वो इसी तरह होते हैं। कुछ इसम इस तरह भी हैं जिस पे एक जबर और एक पेश और एक जबर इस तरह होते हैं, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो तीन हालतें हैं, हालत रफ़ा, आमतौर पर हालत रफ़ा यानी हालत फ़ाइली, और आम सारे उरूफ जो आमतौर पर हालत रफ़ा में होते हैं, ठीक है। फिर वो हालत मफ़ूली में, फिर वो हालत नसब में, और हालत इजाफत में वो हालत जर में चले जाते हैं। तो हमारे पास इसम की तीन हालतें हैं, रफ़ा, नसब, जर। हालत फ़ाइली, हालत मफ़ऊली और हालत इजाफी, ठीक है। अच्छा, जो इसके बाद कुछ इसम ऐसे होते हैं, ज्यादातर तो ऐसे होते हैं कि हालत रफ़ा में उस पे दो पेश होंगे आखिरी हर्फ पर, ठीक है। हालत नसब में दो जबर होंगे, साथ में अलिफ होगा, और हालत जर में दो जेर होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ इसम ऐसे भी होते हैं कि इसमें थोड़ी सी, तो मिसाल के तौर पर जिन इसम के आखिर में गोलती आती है, गोलती, वो जब नसब में लिखा जाएगा तो उसके साथ अलिफ नहीं लगेगा, ठीक है। एक उसूल है, याद रखें। एक नंबर उसूल ये है, एक्सेप्शन हर उसूल के होते हैं ना, इस्तिस्नाहात। एक नंबर इस्तिस्ना ये है कि गोलती पर जिस इसम का इख्तिताम होगा, जैसे जन्नतुन, इसमें आखिर में गोलती है, इस ती को ताए मरबूता भी कहते हैं, ठीक है। तो इस गोलते पर जन्नतुन इसका इख्तिताम होगा, तो ये नसब में जब तब्दील होगा तो जन्नतन लिखा जाएगा, इसके साथ अलिफ का इजाफा नहीं होगा, ठीक है। और हालत जर में जन्नतिन, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जो दूसरी लंबी तय है, मिसाल के तौर पर बिनतुन, ठीक है। बिनतुन को जब नसब में होगी तो ये बिनतन लिखी जाएगी, अलिफ साथ में होगा, ठीक है। यानी ये अगर ऐसे लिखेंगे
تو یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں وہی الف والا اصول لگے گا, کیونکہ اس میں گول تے نہیں ہے, عام جو لمبی تے ہے وہ ہے. تو بن تن یہ جب حالت نصب میں ہوگا تو یہ ایسے ہوگا, بن تن. ٹھیک ہے, اور جر میں پھر بن تن اس طرح. دوسرا اصول یہ ہے کہ جن اسموں کے آخر میں الف حمزہ ہوگا, الف اور حمزہ دونوں, تو اس کے آخر میں بھی حالت نصب میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جیسے حالت رفع میں سماعن, سماعن اس میں الف اور حمزہ ہے. یہ جب نصب میں لکھیں گے تو سماعن اسی طرح الف کا اضافہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس طرح جر میں سماعن. ٹھیک ہے, اس طرح مثال کے طور پر حمزہ پہ ایک اور بھی لفظ کا خاتمہ ہوتا ہے اسم کا, جیسے شیئن. ٹھیک ہے, شیئن, لیکن اس کو آپ جب نصب میں لکھیں گے شیئن الف ساتھ لگے گا, کیونکہ یہاں پہ حمزہ کے ساتھ یا ہے, الف نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس اصول کے تحت یہ صرف سماعن. ٹھیک ہے, الف اور حمزہ ہے, تو یہاں پہ پھر سماعن کے بعد کسی الف کا اضافہ نہیں ہوتا. جس طرح یا گول تے جو ہے تائیں مربوطہ, یہ جس اسم کے آخر میں ہے جنتن, تو یہ بھی جنتن جب لگے گا تو اس میں الف کا اضافہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو مختصراً آپ یہ یاد رکھیں کہ اسم کی حالت, اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. کسی جملے میں جب استعمال ہوتا ہے تو وہ یا تو فاعل ہوتا ہے, اس کو ہم حالت فاعلی میں لکھتے ہیں, یعنی حالت رفع میں یا مختصر رفع. جو مفعول ہوتے ہیں ان کو ہم حالت مفعولی میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو حالت نصب یا مختصر نصب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ویسے نصب ہے لیکن مختصر نصب. اور جو حالت اضافی میں ہوتے ہیں, اضافت کا تعلق جن کا ہوتا ہے, تو ان کو ہم حالت جر میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آج کے لیے یہ یاد رکھیں, اور کل ہم انشاءاللہ تعالی اس کی تھوڑی سی مزید تفصیل بڑھائیں گے. تو تب تک جزاکم اللہ تعالی, یاد رکھیں.